Good morning, everyone. So today we are going to start class 6, chapter number 2, components of food. सबसे पहले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि what are these, who are herbivores, carnivores और जितने भी हमारी चीजें we have already studied, right? Now second one, components of food. सबसे पहले कि why we do need a food. ये हम और इसमें बता चुके हैं आपके 6th क्लास में कि we need food grow for providing energy, we need food for walking, we need food for playing, everything, right? So food अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हम बहुत सारी डिजीज हमें लग जाएंगी, हम बीमार पड़ जाएंगे. लेकिन फूड में ऐसा क्या होता है जो वी आर टेकिंग द फूड. तो आज हमारा टॉपिक ही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. क्या वो चीजें हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ मेनी रिक्वायरमेंट we generate by the food. So we have to start the chapter number 2, components of food, a very important chapter. So in a one language we have to study about nutrition. क्या होता है nutrition? फूड में जो चीजें very essential होती है for growing our life, for development, for growth, everything, these are the nutrients. तो अभी हम इसको पहले फटाफट learn करेंगे एक बार में. So वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे प्यारे बच्चों ने जैसे पढ़ा था कि फूड क्या होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी. फूड हमें गिव्स अस एनर्जी फॉर वॉकिंग, फॉर डांसिंग, फॉर सिंगिंग, फॉर एवरीथिंग, राइट. अब देखना है कि फूड में ऐसा होता क्या है. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कि कौन कौन से हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मैनी मोर. यानी उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो आपके फूड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एसेंशियल थिंग्स होती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग योर लाइफ. तो वन हम सबको पढ़े. सो बच्चों, आपको पता है नाउ वी हैव टू डिवाइडेड योर फूड कंपोनेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स. Carbohydrate, fats, vitamins and minerals, protein and many more. First we have to start the carbohydrate. As a carbohydrate, that means it's a more energy giving food. और मालूम है किस किस में होता है, आपके बनाना, ग्रेप्स, शुगर, इन सब चीजों में होता है. ठीक है. अभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होता है इन 2 टाइप्स होता है. फर्स्ट वन सिंपल एंड द सेकेंड वन इज slightly complex. The simple one is sugar, which is mainly found in banana, papaya, grapes, many more, and you have to find it. Second one is starch. Starch, that means plant makes their own food, and this food just work as an energy for the plants, and this is stored as a food in a leaf that is called your starch. It's a slightly little complex of a carbohydrate part, right? तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने देख लिया. नाउ वी हैव टू टेक द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट में तो 2 है. आप पूछेंगे मैम किसका हम टेस्ट करेंगे. तो आज हम टेस्ट करेंगे किसका, पोटैटो का. ठीक है, जिसमें हमें मालूम हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, टू टेस्ट फॉर द स्टार्च. तो स्टार्च का हमें टेस्ट करना है. तो हम एक्टिविटी ये देखते हैं. देखिए हमारी ये एक्टिविटी और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स टू. Everyone, now we have to decided, we have learned already a carbohydrate, we think about the carbohydrate. Now think something about what is the test of starch. हमें करना क्या है. तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है. मम्मा से बोलना है कि एक पोटैटो दीजिए एंड यू हैव टू कट द पोटैटो इन द 2 पार्ट्स. उसको 2 पार्ट्स में से हाफ कर लेना है. देन यू हैव टू पुट द 2 drops of iodine solution. What we have to find, हमें find करना है test the presence of starch. Right? So a raw potato, कच्चा potato लेना and you have to say, mama please cut these into half part. मम्मा जब half part करेंगी then you have to take this activity. Look at the picture. Very nice. Now you have to just drop a 2 drop of iodine solution, pour into this half cut potato. Then you got what appear blue black color. If the blue black color appear, you easily get to know yes, starch is found in it. So this test of starch. Now the many more things like maize, rice and sugarcane. You can test the sugarcane too, and you also test someone known. Yes, remember, write it. Yes, very good. You can test your bread also. So today perform this activity once again in rice, bread, maize
etc. So you have to learn, and many times read it. Only the iodine solution needed. Okay, this is a test of what? This is a test of starch. Okay बच्चों, the next one, a very important topic. The next topic is protein. Protein, that means we need in a very good amount in our body, and very important, ये जो प्रोटीन होता है, it's a body building food होता है. आपकी बॉडी में अगर कुछ भी हो जाता है, कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, आप गिर पड़ते हो, आपको इम्यूनिटी चाहिए होती है, प्रोटीन देता है. एंड ये पिक्चर देखिए एंड यू गेट टू नो कि वेयर अ लॉट ऑफ प्रोटीन यू गेट फ्रॉम how many sources. These are the pulses are the main source of the protein. और ये आपको जो पिक्स दिख रही है, इसमें जितनी भी मटेरियल्स हैं, ये सब प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग फूड है. कहीं पर भी अगर आप प्रोटीन में, यानी आप दालें नहीं खाते हैं, आप पल्सेस को नहीं खाते हैं, आप चना नहीं खाते हैं, आप सोयाबीन नहीं खाते हैं, तो बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी. आपकी बॉडी एक जो कहते हैं कि पूरी बॉडी जो होगी वो बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं पाएगी. दैट मीन्स अगर आप कहीं गिरते हैं, आपकी हड्डियां टूटती हैं, आपकी बोन्स क्रैक होती, तो वो बहुत जल्दी वापस अपनी ही कंडीशन में नहीं आ पाएंगे. इफ यू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है, सबसे अच्छी बात है. ये जो सामने मैंने आपको पिक्स दिखाई है, इसमें जितनी भी फूड आइटम्स है वो यू हैव टू ईट इट, आपको खाना ही है. इसके बाद मैं जब सारी चीजें आपको कंपोनेंट्स पढ़ा दूंगी, तब बताऊंगी कौन से कंपोनेंट से कौन सी डिजीज होती है. तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? पल्सेस में, यानी दालों में, सोयाबीन वगैरह में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. ओके, द नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फैट्स. और आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड्स हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखिएगा, जो फैट्स होता है ये एक्सेस अमाउंट में एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी गिविंग फूड है, ज्यादा देता है. यानी आप मिल्क, घी, ऑयल जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी. लेकिन उसका सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, नुकसान है. वो क्या है कि जितना भी फैट्स आपको लेते हो, यू टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी. आपके पास तो आपको बहुत सारी एनर्जी, यू कैन इजीली गेट इट, आपको मिल जाती है. पर जब आप उस एनर्जी का आप उतने फैट का यूज नहीं कर पाते हो, तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट फॉर्म में जो होता है वो जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है, और बहुत सारी डिजीज को क्या करता है? ओरिजिनेट करता है. तो फैट्स एनर्जी तो ज्यादा देता है एज कार्बोहाइड्रेट, बट यू कैन यूटिलाइज this fats as soon as possible. If you will never utilize this fat, that means your body just get a fat, or you just have, or you just accept a lot of problems. Okay, so fat energy giving food है as compared to carbohydrate, but इसमें जितनी एनर्जी आप लोगे, जितना आप ऑयल खा रहे हो, जितना आप बटर खा रहे हो, जितना आप फुल मिल्क क्रीम पी रहे हो, उतनी आपको एनर्जी यूज भी करनी पड़ेगी. वॉकिंग में, रनिंग में, स्विमिंग में, वट एवर द इंडोर चीज, आउटडोर चीज, जो भी चीज होती है, याद रखिएगा. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. ओके, यस, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स. फैट्स का टेस्ट करने के लिए अगर हम ध्यान रखें तो क्या करना है हमको कि एक पराठा ले लिया आपने, ठीक है, और उस पराठे को, या आपने एक समोसा ले लिया, या आपने बटर ले लिया, और उसको टिश्यू पेपर के ऐसे बीच में रखा, जो आपको इस स्क्रीन में दिख रहा होगा. और कुछ ही टाइम के बाद वो एक स्पॉट छोड़ देता है, किसका? ऑयल जैसा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड योर फैट. दिस इज द टेस्ट फॉर योर फैट. और याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी आप कोई चीज ऑयली लेते हैं, ट्राई कीजिएगा कोई भी चीज आप रात में ऑयली बहुत ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो आपकी मशीन भी सो रही होती है, एंड उसको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है टू डू गेटिंग जस्ट रिलीज दिस एनर्जी. और आप सो रहे हैं तो आपकी उतनी एनर्जी नहीं लगती. तो कोशिश कीजिएगा, ऑलवेज ट्राई, कि जब भी आपको फैट लेना है, आप सुबह ब्रेकफास्ट या लंच में, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सके. ओके, द नेक्स्ट वन इज विटामिन्स. दिस इज योर विटामिन्स. और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ अ लॉट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. आपको जितनी भी ये पिक्चर्स में फ्रूट्स दिख रहे हैं, वो सब आपको विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं. विटामिन्स और मिनरल्स की अगर आपकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आपको कुछ डिजीज हो सकती है. वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डिजीज. क्या क्या होती है? विटामिन ए जो होता है वो हरी यानी ग्रीन
लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा होता है, और जब आप उसे नहीं खाते हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस या हम कह सकते हैं कि आई रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, राइट। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। विटामिन बी जो होता है इट स्पेशली यूज और रिलेटेड हम इसे बोलेंगे आपका कि ये जो होता है आपका इसमें जो होते मेन आपकी जो असर डालता है वो आपके स्किन से रिलेटेड चीजों में डालता है, या हम कहेंगे कि जैसे माना कि अगर आप उसे आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उससे रिलेटेड चीजों में ये असर डालता है, वहां पर इसका इफेक्ट होता है। अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी जैसे कि एज इंडिकेटेड कि विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, जिसके आपके जो ये आपकी लिप्स हैं उसमें छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं। सबसे ज्यादा विटामिन सी किससे मिलता है? आपके ऑरेंजेस, आपके लेमन से। अब विटामिन डी की बात आती है। आपकी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए विटामिन डी ऑलवेज बी योर फ्रेंड। अगर आपको अपनी बोन्स को जो है बहुत ज्यादा अच्छा रखना है तो आप क्या करेंगे, सुबह 9 to 12 o'clock की जो गर्मियों में भी अगर धूप आई तो 1 घंटे आप कभी भी धूप 9 से 12 के बीच में या 8 to 10 के बीच में जो भी आपको सनलाइट मिल रही है, क्योंकि विटामिन डी सबसे ज्यादा सनलाइट में होता है। उसके बाद तो आपके जो आजकल विटामिन डी, जुबेनॉल, कैल्सिफेरॉल बहुत सारी टैबलेट्स आ गई, लेकिन याद रखिए विटामिन डी सबसे ज्यादा एक्सेस में जो होता है वो सनलाइट में होता है। उसके बाद आता है आपका विटामिन ई, और विटामिन ई स्पेशली इंपोर्टेंसी को दिखाता है, या हम जिसे बोलते हैं कि जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके लीवर को इफेक्ट करता है, आपके लीवर को अच्छा रखता है। अगर आप विटामिन ई सबसे ज्यादा किस में होता है, विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई सबसे ज्यादा जो होता है मिल्क में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, सीरियल्स में है, वो इन सब चीजों में है। अगर आप खाते हो तो आपका लीवर हमेशा हेल्दी फिट रहता है। अब बात आती है किसकी? अब आती है बात आपके विटामिन के की। विटामिन के हमेशा ऑलवेज भी रिस्पॉन्सिबल होता है टू क्लॉट बनाने आपके ब्लड में, यानी ब्लड में क्लॉट का मीन्स क्या होता है कि सपोज अगर आप कहीं गिर जाते हो एंड सपोज आपके हैंड में, लेग में, कहीं से जस्ट ब्लड विल बी कम आउट, बाहर ब्लड निकल रहा है आपके वुंड से या चोट से, तो वहां पर आपका जो क्लॉटिंग का काम है वो विटामिन के करता है। जब विटामिन के बहुत डिफिशियंट हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो आपका जो ब्लड क्लॉट है वो इजीली नहीं बन पाता, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात आती है कि विटामिन के हमें मिलेगा कहां से? तो जब हम बात करते हैं विटामिन के की तो वो हमें मिलता है सोयाबीन से, वो हमें सोया चाप से मिलता है, डिफरेंट टाइप के पल्सेस से मिलता है। यानी लेने देने और कहने का मतलब है कि हरी सब्जियों को खाइए, दाल को खाइए और दूध पीजिए, बटर खाइए, पर एक सफिशिएंट अमाउंट में खाइए। सभी चीजों का कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ पढ़ के ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इफेक्ट डालते ही डालते हैं। सो वी हैव टू लर्न ऑलवेज, वी हैव टू टेक ऑलवेज अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इफ यू वांट टू बर्गर, पिज्जा, it's not good. You can select always and opted always be a one thing that is your like mango, banana, your potato, your pulses, your cauliflower, your bhindi, whatever you like it, you eat it. Okay? चलिए, अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया। आपने खाना खाया, वेरी गुड, आपकी थाली में आपकी मम्मी ने डिफरेंट टाइप की चीजें बनाई जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट का भी था, फैट का भी था, प्रोटीन का था, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सैलेड, यानी रफेज। आपकी बॉडी के अंदर रफेज नहीं जाएगा, यानी डाइटरी फाइबर्स नहीं जाएगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। क्योंकि डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो देखा जाए तो हमारी बॉडी को वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन उनका जो सबसे मेन रोल होता है, इट विल रिमूव योर कॉन्स्टिपेशन। आपके खाने में आपने जो खाया, आपने बर्गर खाया, पिज्जा भी खाया, क्योंकि बच्चे तो मानते नहीं है, आपने जो भी चीज खाई उसको आपको कंप्लीटली उसको क्लीन करना। आपके जो कहते जैसे मम्मा क्या करती हैं, जैसे आपके घर में सर्वेंट आती होगी तो वो क्या करती है, पूरे रूम की सफाई करके झाड़ू क्या करती है, एक तरफ से कूड़ा झाड़ू से हटा के एक साइड में ले आती है। बिल्कुल वही काम डाइटरी फाइबर्स का हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि सबसे ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स में होता है, जो सबसे ज्यादा सैलेड्स में होता है। इन डाइटरी फाइबर्स को खा के आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा एंड यू ऑलवेज बी फुल ऑफ ग्रोथ, फुल डेवलपमेंट इन योर बॉडी। एंड कॉन्स्टिपेशन जो होती है बहुत ही बेकार चीज है फॉर बच्चों के लिए, वो आपकी बॉडी में खाने को लगने ही नहीं देती है। और ये डाइटरी फाइबर्स में अगर आप सैलेड खाते हैं, आप कुकुम्बर खाते हैं, आप सैलेड के जो लीव्स होती हैं वो खाते हैं, तो इट विल हेल्प यू टू
fresh every day and you will always smile. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर. यू नो दैट हमारी जो पूरी बॉडी होती है 70% ऑफ वाटर उसमें होता है, और वाटर अगर हम नहीं पियेंगे कॉन्स्टिपेशन तो होगा. ब्लड को बहुत थिक से थिन करना यानी पतला दुबला करने के काम आता है. वाटर की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है. अगर आप वाटर नहीं पीते हो आप डिहाइड्रेट आपकी बॉडी हो जाएगी, आपके लिप्स हमेशा सूखे रहेंगे, आप ढंग से बात करोगे आपके मुंह में हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कुछ ड्राइनेस आ रही है. डिहाइड्रेशन बहुत खराब चीज है. जब हमें लूज मोशन वगैरह होता है तब हमें ओआरएस का घोल भी इसलिए आता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट यानी आपकी बॉडी से वाटर नहीं निकले, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर तो ऑलरेडी है और हमें नीड है बहुत ज्यादा पानी पीने की, जिससे हमारे जो भी हम चीज खा रहे हैं वो वन प्लेस टू अनदर, यानी हम अगर यहाँ से खा रहे हैं तो वहां तक तो पहुंचे जहां पर हमारी मशीन वर्क कर रही है. तो वाटर इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट एंड यू लर्न वाटर इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, नॉट in a simple way, in a very great and big way. Okay, some very important point always we remember. Water always help to support to transfer our digestive in a digestive tract. It's a very helpful. If you keep healthy, you every day just you drink a 2 to 3 bottles of water every day at any cost. Now the topic is coming on. It's a very important topic, balanced diet. What are the balanced diet? जब हमारी एक थाली मम्मी ने लगाई, उस थाली में कुछ प्रोटीन था, कुछ सम कार्बोहाइड्रेट देयर, सम आर डाइटरी फाइबर्स हैं यानी सैलेड्स वगैरह हैं, यहाँ वाटर भी है एक ग्लास में, हमें वाटर दे रखा है, यहाँ पर फैट्स भी है, एवरीथिंग इन अ रेशियो, इन अ वेरी गुड रेशियो. यानी कहने का मतलब वट एवर वी आर ईटिंग अ गुड रेशियो, अगर हम सारी चीजें एक अच्छे रेशियो में खा रहे हैं तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. बैलेंस डाइट आप नहीं लोगे तो आपको कोई ना कोई चीज की डिफिशियंसी होती रहेगी. सपोज यू आर टेकिंग ओनली राइस, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, आपको राइस पसंद है, आप ऑलवेज यू हैव टू एवरी डे यू टेक अ राइस ओनली, राइट? उसमें आप कार्बोहाइड्रेट तो बढ़ा रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोटीन, व्हाट अबाउट द फैट्स, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स. तो बैलेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी में हर एक कॉम्पोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन्स, एवरीथिंग इन अ वेरी विटामिन एंड मिनरल्स वेरी डेफिनेट अमाउंट, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट. और जब आप बैलेंस डाइट खाते हो यू ऑलवेज बी हेल्दी, यू ऑलवेज बी वाइजर, यू ऑलवेज बी ग्रो इन अ वेरी डेफिनेट रेशियो. कहते हैं बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, कभी किसी को इम्यून सिस्टम नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू हैव एवरी डे अ बैलेंस डाइट यू ऑलवेज बी हेल्दी. आपकी बॉडी इतना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी, योर बॉडी ऑलवेज फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ओके, यस. अब हम नेक्स्ट बताएंगे कौन कौन सी डिजीज होती हैं आपके किस किस कंपोनेंट्स को नहीं खाने से. द नेक्स्ट सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लाइक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज. हमने भी बताया था कि जब भी आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो और जो भी चीज का प्रपोर्शन आप अपनी डाइट में नहीं ले रहे हो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है योर बॉडी. हाउ? प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज 2 टाइप्स की होती है, क्वाशरकोर एंड द मेरेस्मस. ठीक है, क्वाशरकोर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस बच्चे को देखिए. इस बच्चे को जब आप देखेंगे तो यू नीड स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो रही है, स्किन बिकम्स ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, लिम्स एक्चुअली स्पेशली लेग्स जो होते हैं थिन है, लार्ज स्पॉट्स लाइक बेली हो जाता है, बल्जिंग आईज हो जाती है. ये याद रखिएगा, ये क्वाशरकोर प्रोटीन की डिफिशियंसी से है. ऐसी दूसरी जो आपकी डिजीज है वो है मैरस्मस. मैरस्मस का जो रीजन है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों मिलके आ जाते हैं. ये भी प्रोटीन, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट फैट्स का प्रोपोर्शन भी होता है कि नहीं हुआ. तो मैरस्मस, इसमें बच्चा बहुत लीन हो जाता है, वो हाँफने लग जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वो शिवर करती है, उसकी जो आपकी हम बोलेंगे उसकी जितनी भी मसल्स होती हैं वो सब दिखने लग जाती हैं. बच्चा एक ड्राई स्केली हो जाता है, बच्चे के मुंह से अजीब मतलब जिसे हम बोलेंगे कि लाइक गम्स भी स्मेल बहुत बेकार से करने लग जाते हैं. तो ये याद रखिएगा कि जो भी चीज आप नहीं खाते हैं उसका इफेक्ट आप में पड़ता है. इससे पहले मैंने आपको भी क्या बताया था, विटामिन के बताया था कि विटामिन ए से आपका क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी आईज में प्रॉब्लम है. विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है, स्किन डिजीज है. विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, जो गम्स हो जाते हैं आपके लिप्स के पास.
उसके बाद विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी अब वीक हो जाती है। विटामिन ई से आपके लिवर डैमेज और मसल्स प्रॉब्लम आ जाती है। और विटामिन के से आपकी बॉडी में ब्लड में क्लॉट नहीं बनता है। तो ये भी मैं साथ साथ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी पता चल गई। अब एक डिफिशियंसी और है, वो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज किससे, बहुत ध्यान से सोचिए किससे। सोचिए अब मैं किसके बारे में बता रही हूँ। यस, सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट वन, बट से एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस फूड, और आप इस फूड को खाने को जो भी आप खा रहे हो, बहुत फैट खा रहे हो, बर्गर, पिज्जा, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, तो वो फैट फॉर्म में आपकी बॉडी में जमा होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं एक्सेसिव जब आपका इनटेक ऑफ फूड होता है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हो। आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, आप कुछ भी बात करोगे तो आप एकदम से आप ब्रीथ आपकी बहुत फास्ट होने लग जाती है। आप बहुत तेज जो है लेटेस पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हो, आप वॉक नहीं कर सकते हो, और बहुत ज्यादा आपको अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने जो भी लर्न किया सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट वन वी हैव ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमें अपने फूड में ऑलवेज वी हैव अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट दैट मीन्स कि एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals, rough resin and many more things in a definite proportion में होना चाहिए। and we have to always use butter but as in least quantity, क्योंकि जब आप फैट्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो वो आपकी बॉडी में इनटेक हो जाता है, जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है और फैट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो या बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होंगे प्लीज कमेंट में लिखिए। नेहा मैम आपके सॉल्यूशंस को देगी और ऑलवेज भी रेडी हूं मैं। आप किसी भी टाइम पूछिए, आपको कोई लेक्चर में कोई पार्ट और लंबा पढ़ना है तब भी आप नेहा मैम को बोलिए, क्योंकि ऑलवेज आई लव टू टीच। ओके, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर योर नेहा मैम।